Good morning, students. Today we are going to discuss about Internet and Web, World Wide Web. First, what is Internet? Internet is the largest network in the world that connects hundreds of thousands of individual networks all over the world. But we can also say that Internet is a network of network. We can also say that Internet is defined as largest network in the world, the largest network of computer in the world. So, rather than moving through geographical space, it moves your idea and information through cyberspace, the space of electronic movement of ideas and information. तो साइबर स्पेस के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन अब इंटरनेट का क्या है, नो वन ओन्स इट, कोई भी ओन नहीं कर रहा है वहाँ पे, ना कोई गवर्नमेंट है वहाँ पे, ना कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन होकर इस इंटरनेट को गवर्न कर रही है वहाँ पे. इट हैज नो फॉर्मल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नहीं है, एज इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. This lack of centralization made it less vulnerable to wartime or terrorist attack. क्योंकि यहाँ पे किसी का भी कोई भी फॉर्मली मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे कि कौन इसको वहाँ पे गवर्न कर रहा है इंटरनेट को, तो ये लेस वल्नरेबल है वहाँ पे वार टाइम और टेररिस्ट अटैक से. To access the internet, an existing network need to pay a small registration fee and to agree to certain standards based on TCP/IP Transmission Control Protocol or IP protocol. TCP/IP. Why do we use internet? To send email messages, send or receive files between computers, participate in discussion group, mail list, news group, blogs, surfing the web, searching any term, any keyword on the internet. Next is what is web or World Wide Web. The web consists of information organized into web pages containing text and graphical images. We can also say that World Wide Web it consists of billions of web pages or websites stored on various computers spread across throughout the world. तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे वेबसाइट्स, वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स आपके स्टोर्ड हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स, वो जो computers हैं, that are connected to each other. So we can say that is world wide web. It contains hyperlinks, hypertext links, highlighted keywords and images that leads to related information. तो ये कंटेन करता है, हाइपरलिंक्स भी कंटेन करता है, वहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू सर्चिंग करता है, इमेजेस भी कंटेन करता है. तो कलेक्शन ऑफ linked web pages that has common theme or focus is called website. और single page जहाँ पे हम, that is collection of images, text, hyperlinks, videos, plus. So these are known as web pages. So first, the main page that have all the pages on particular websites are organized around and linked back to is called site home page. वेबसाइट का होम पेज क्या होगा, जहाँ पे सारे दूसरे जो वेब पेज है उस वेबसाइट के, उसके लिंक्स गिवन है वहाँ पे, और वहाँ से आप मेन पेज पे वापस आ सकते हो, तो वो है होम पेज. तो हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट. Many schools and businesses have direct access to internet using special high speed communication line and equipment. वहाँ पे लीज लाइन ले रखी है, ब्रॉडबैंड लाइन है. Students and employees can access through the organization local area network or through their own personal computers. Another way to access the internet is through internet service provider के through. वहाँ पे जैसे एयरटेल वगैरह है, तो हाउ टू एक्सेस टू इंटरनेट. टू एक्सेस इंटरनेट एग्जिस्टिंग नेटवर्क नीड टू पे स्मॉल फी, आपको पे करनी होती है, इसके लिए आपने TCP/IP कनेक्शन यूज किया वहाँ पे. Each organization pay for its own network and its own telephone bills, but those costs usually exist independent of the internet. Regional internet companies route and forward all traffic and cost is still only that of local telephone call. अब ISPs क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है. A commercial organization with permanent connection to internet that sells temporary connection to subscriber. अब आपको temporary connection provide कर रहा है subscribers को, हमें भी हमारे घर पे. एग्जांपल यहाँ पे अमेरिकन क्या है, प्रोडिगी, अमेरिका ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, AT&T नेटवर्क्स. इंडिया में बात करें तो एयरटेल, BSNL, MTNL, जियो. Once you have internet connection, then you need to special software called browser to access the web. Web browsers are used to connect you to remote computers, open and transfer files, display text and images. Web browser are specialized program. वेब ब्राउजर्स जो है आपके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, जो आपको रिमोट कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट करता है, एंड देन वी कैन ट्रांसफर ओपन फाइल्स देयर एंड ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम देयर दैट कंप्यूटर टू आवर कंप्यूटर.
डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस वेब पेजेस हम डिस्प्ले कर रहे हैं। वेब ब्राउज़र स्पेशलाइज्ड क्लाइंट बेस्ड प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है। वेब ब्राउज़र की जो नेम है नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, Mozilla Firefox, Mozilla, Netscape Navigator, Apple Safari and so on. Then web जो है आपका client server architecture पे वर्क करता है। Web is a collection of files that reside on computers. Computers we can also say that stored on computers called web server. तो web जो है collection of files है, that means web pages है। तो collection of web pages, websites that stored on computer called web server. जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर होती है वो वेब सर्वर that are located all over the world and are connected to each other through the internet. और वो जो वेब सर्वर्स हैं throughout the world spread out there and then that are connected to internet. When you use your internet to become part of web, your computer becomes a web client in web worldwide client server network. तो उस केस में क्या होता है, वेब क्लाइंट बन जाता है आपका कंप्यूटर, क्योंकि जो वेब है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। अगर आप कंप्यूटर बैठे हैं, ब्राउजर ओपन किया है, वहां से रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे वेब पेज चाहिए, वहां पे आई वांट टू ओपन दिस वेब पेज facebook.com, तो आपका कंप्यूटर दैट बिकम अ वेब क्लाइंट, दैट इज ब्राउजर। योर ब्राउजर इज अ वेब क्लाइंट दैट सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। वेब सर्वर सर्च फॉर दैट data and files and then come back to give response to your computer, and then your browser web client open that file and display on your web browser. The web browser is software that run on your computer to make it work as web client. ये कंप्यूटर से वर्क करता है। फिर देखते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जनरली वेब सर्वर्स जो आपके वेब पेजेस वेबसाइट्स बनती है वो HTML में बनती है वहाँ पे, तो इसके लिए, और वेब ब्राउजर जो है आपका उन HTML पेजेस को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 10th में पढ़ा है ब्राउजर क्या होता है। फिर आता है एड्रेसेस ऑन वेब। IP एड्रेसिंग आपको पता ही है कि ईच कंप्यूटर ऑन internet in an internet on your network has a address, unique identification number called IP address. तो एक हर एक इंटरनेट जब सब वो कनेक्ट होता है तो each and every computer on the network does have a unique identification number called IP address. IP address system currently use 4 part number यहाँ पे use किया जाता है generally, और each part contain maximum value range from 0 to 255. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 106.29.242.17 4 पार्ट्स है यहाँ पे, और ईच पार्ट की जो वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमम 0 वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम 255 है। उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। फिर IP एड्रेस जो है जनरली अभी 4 बाइट्स एड्रेस है, दैट मींस 32 बिट्स है, तो 256 into 256 into 256 into 256, दैट इज 4.2 बिलियन पॉसिबल एड्रेसेस आर अवेलेबल है। अब जो करंटली यूज आ रहा है वहाँ पे, तो उसमें 4 बिट की जगह 6 बिट्स ऑफ IP एड्रेस यूज कर रहे हैं वहाँ पे, दैट मींस 256 into 256 into 256 into 256 into 256 into 256, दैट मींस 256 raised to power 6, इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है वहाँ पे। देख लीजिए कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वहाँ पे। फिर डोमेन नेम एड्रेसिंग, दैट मींस most web browsers do not use the IP address to locate websites and individual pages. They use domain name addressing. अब हमारे जो ब्राउजर है वहाँ पे हम IP एड्रेस नहीं लिखते, वहाँ पे डोमेन नेम लिखते हैं, दैट मींस facebook.com लिखेंगे, ना कि वहाँ पे 172.168.1.1। हम वहाँ पे डोमेन लिखते हैं facebook.com, yahoo.com, gmail.com या कोई वेबसाइट आईडी नेम publicschool.com, तो हमने वहाँ पे डोमेन नेम लिखा, दैट मींस डोमेन नेम जो है वेबसाइट का वो भी यूनिक होता है वहाँ पे, दो वेबसाइट्स का नेम सेम नहीं होगा वहाँ पे। So we can also identify डोमेन नेम जो है यूनिक होगा वहाँ पे। अगर वेबसाइट का नेम मैं लिखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो रिगार्डिंग वहाँ पे, अब जो डोमेन नेम आपका ब्राउजर में हमने डोमेन नेम लिखा है, तो वहाँ से डोमेन नेम जाता है DNS सर्वर के पास, डोमेन नेम सिस्टम के पास। वो सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है आपके, तो वहाँ पे वो क्या करता है, सर्च करता है कि आपने जो डोमेन नेम लिखा है वहाँ पे उसके रिगार्डिंग IP एड्रेस क्या है, दैट मींस DNS सर्वर क्या करता है वहाँ पे आपके डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है टू IP एड्रेस, ट्रांसलेट करता है वहाँ पे, एंड देन वो उस IP एड्रेस के थ्रू उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है जो जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट पड़ी है facebook.com है, और जो कंप्यूटर आपके इस सॉफ्टवेयर को रन करता है DNS सिस्टम को, वो डोमेन नेम सर्वर होता है वहाँ। फिर डोमेन नेम एड्रेसिंग, इसमें आप देखते हैं कि डोमेन नेम जो है एड्रेसिंग है, उसमें 2 पार्ट्स है, फर्स्ट इज डोमेन नेम और अनदर इज डोमेन एक्सटेंशन। तो डोमेन नेम जो है आपका नेम गिवन होता है वहाँ पे, नेम जैसे facebook.com, तो फेसबुक जो है डोमेन नेम है वहाँ पे,
एंड .com इज एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन है वो टू टाइप्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे है और सेकंड टाइप आपके कंट्री के बेसिस पे। तो फर्स्ट अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे .com कमर्शियल वेबसाइट है, वहाँ पे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। .org नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डॉट नेट है तो नेटवर्किंग वेबसाइट से वहाँ पे जैसे आप डेटा डाउनलोड करते हैं, जनरली डाउनलोडिंग ऑफ वीडियो ऑडियो जो भी आप डाउनलोड करते हैं वहाँ पे जनरली वेबसाइट का नेम .net होता है, .net से एंड होता है वहाँ पे। .edu फॉर एजुकेशनल वेबसाइट्स, .gov मींस गवर्नमेंट वेबसाइट्स, .mil दैट मींस मिलिट्री रिलेटेड वेबसाइट्स। तो ऐसे ही कंट्री रिलेटेड भी है वहाँ पे, जैसे इंडिया का .in, फिर आपके यूएस का .us, यूके का .uk, रशिया का .ru, ऑस्ट्रेलिया का .au एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपकी अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, the IP address and domain name each identify a particular computer on the internet. A particular computer को identify करता है वहाँ पे। However, they do not indicate where the web page HTML document reside on that computer. अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URLs हैं यहाँ पे, तो ये आपके आइडेंटिफाई करता है वेब पेज की एग्जैक्ट पोजीशन। वेब ब्राउजर रिलाई ऑन URL पे, वेब ब्राउजर डिपेंड करता है। URL में 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेगा। देन डोमेन नेम क्या होगा वहाँ पे उस वेबसाइट का, जैसे www. ये तो वर्ल्ड वाइड वेब को बता रहा है जहाँ पे डेटा आपका एक्चुअली में डिसाइड कर रहा है कंप्यूटर जो बिलोंग कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब से बिलोंग कर रहा है। फिर यहाँ पे डोमेन नेम जो है वो विद एक्सटेंशन org ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ। फिर पाथ नेम कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है वहाँ पे। सो फर्स्ट पार्ट इज वर्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल, जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर डोमेन नेम ऑफ कंप्यूटर ऑन विच द फाइल इज साइट, जहाँ पे एक्चुअल में कंप्यूटर का जो नेम है दैट मींस वो कंप्यूटर जहाँ पे आपका डेटा एक्चुअल में रिसाइड कर रहा है, स्टोर है वहाँ पे। फिर पाथ नेम कौन से फोल्डर के अंदर है और फिर कौन सी फाइल है वहाँ पे। तो ये फर्स्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सा प्रोटोकॉल आपको यूज करना है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू HTTP दैट मींस वेब पेज आप लेके आ रहे हो। फिर यहाँ पे डोमेन नेम www.chicago symphony.org, तो यहाँ पे ये विद एक्सटेंशन डोमेन नेम विद एक्सटेंशन डोमेन होस्ट है। फिर पाथ नेम कौन से फोल्डर के अंदर वो फाइल है, फिर फाइल का नेम। फिर HTTP ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर यूज टू मूव फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। बट ये जो HTTP है हाइपरटेक्स्ट वाली फाइल्स को दैट मींस वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है वहाँ पे इंटरनेट पे। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट, तो नंबर ऑफ सर्च इंजन हम यूज करते हैं वहाँ पे। सर्च इंजन गूगल है, याहू सर्च है, गूगल सर्च है, MSN है वहाँ पे। तो जो अब बन गया है वहाँ पे बिंगो भी है वहाँ पे, MSN सर्च भी है, बिंगो भी है वहाँ पे। तो इस तरह से सर्च इंजन है जो आपके आपके पर्टिकुलर वेबसाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपकी यूज आता है वहाँ पे। कैसे सर्च करते हैं, सर्च बाय टॉपिक और सर्च बाय कीवर्ड्स। टॉपिक से सर्च करते हैं, पूरा पूरा टॉपिक आप डाल देते हैं वहाँ पे, सर्च बाय टॉपिक यू कैन नेविगेट थ्रू टॉपिक लिस्ट। और सर्च बाय कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आप पर्टिकुलर डालते हैं वहाँ पे, जैसे क्लास 10 प्रोजेक्ट डालते हैं, साइंस प्रोजेक्ट जो भी है तो वो अब आता है वेब एप्लीकेशन। तो फर्स्ट है चैट। The chat is the program that enables you to communicate with others in real time through messages. तो चैटिंग जनरली जो है रियल टाइम मैसेजेस के लिए यूज आती है। वहाँ पे रियल टाइम में दोनों ही ऑनलाइन है, देन मैसेजेस ट्रांसलेट और सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, और नॉन रियल टाइम में मैसेजेस सेंड नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तो पहले की बात है तो वहाँ पे हम जब दोनों ही ऑन ऑफ ऑनलाइन है वहाँ पे तभी मैसेज सेंड होते थे, अदरवाइज आप मैसेज उनको सेंड नहीं कर सकते चैटिंग। The user can log on to certain website and communicate with each various other users online by using इंटरनेट चैटिंग सॉफ्टवेयर। तो पहले जो था चैटिंग सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता था, एंड देन आप जैसे मैसेंजर्स थे या वो मैसेंजर गूगल का मैसेंजर था और गूगल टॉक वगैरह आपको इंस्टॉल करने पड़ते। तो चैट सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू टाइप कमेंट इन वन विंडो एंड रिसीव रिप्लाई इन अनदर फ्रॉम समवन हु इज एक्सेसिंग द सेम सॉफ्टवेयर। गूगल जो यूज कर रहा है, गूगल टॉक यूज कर रहा है, गूगल टॉक के थ्रू ही मैसेजेस आपके वापस रिप्लाई होंगे वहाँ पे। तो सेम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वो ही आपस में कम्युनिकेट करती है। याहू मैसेंजर पे दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों को ही याहू मैसेंजर ही यूज करना पड़ेगा। तो इसी का एक पार्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग, जो चैट का ही पार्ट है। इंस्टेंट मैसेजिंग दैट मींस इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर।
इंस्टेंट मींस अभी के अभी हाथों हाथ मैसेज आपके डिलीवर करते हैं, वहाँ पे आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ऐसा लगता है फेस टू फेस आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ। तो instant messaging software is widely used for personal commercial use के लिए भी यूज करते हैं। Some instant message software allow user to view messages received when they are not logged on. These are called offline messages. अब instant messaging जो features होते हैं वहाँ पे text messages can be sent from one person to another person similar to SMS। फिर ऑडियो कॉलिंग करते हैं, आजकल टाइम में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ग्रुपिंग करके कॉल करते हैं, वहाँ पे वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे फाइल ट्रांसफर जो जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल भी आजकल सेंड कर सकते हैं। मैसेज हिस्ट्री, आपके मैसेजेस जो सेव होते हैं वहाँ पे आप फ्यूचर में मैसेज को वापस दे सकते हैं। फिर एप्लीकेशन टू टाइप्स की यहाँ पे, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन यूजर कंप्यूटर। एप्लीकेशन बेस्ड जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आप मैसेजिंग सेंड कर सकते हो। गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिगोल और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप इंटरनेट वेब जैसे वेब ब्राउजर को यूज करके वहाँ पे जैसे फेसबुक पे आप चैटिंग करते हैं तो वहाँ पे फेसबुक का वेब पेज के ऊपर ही करते हैं, अलग से इंस्टॉल नहीं करते हैं। बट मोबाइल में यूज करूँ तो हम लोग मोबाइल में फेसबुक की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, गूगल की भी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप की भी ऐप इंस्टॉल है वहाँ पे। तो इस तरह से तो बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप, वीवो, याहू मैसेंजर फॉर वेब, अमेजन वेब मैसेंजर, फेसबुक, ईमो। तो इस तरह से अब एडवांटेज क्या है आपके इंस्टेंट मैसेजिंग की, फोटो कैन बी सेंड यूजिंग Photo can be sent using an instant messaging. Emotions can be expressed easily when communicating with a person. फोटोज भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज टॉकिंग टू समवन फेस टू फेस। आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, अगर टेक्सटिंग भी भेज सकते हो भी आपको लगता है हाथों हाथ आपने मैसेज सेंड किया, वापस रिप्लाई आया हाथों हाथ, तो फेस टू फेस हम कॉलिंग मैसेजिंग कर रहे हैं, टेक टॉकिंग कर रहे हैं, वो भी यू कैन ऑल्सो ट्रैक टॉक इन ग्रुप में भी कर सकते हैं। इट मेक इट पॉसिबल फॉर यूजर टू कीप इन कॉन्टेक्ट एंड चैट विद ईच अदर इवन इफ दे आर इन डिफरेंट कंट्रीज में भी हम रह रहे हैं। तो ऑडियो कॉल करना, वीडियो कॉल करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ज़्यादा इंटरनेट डेटा यूज करता है, तो उस केस में भी हमारे लिए ये चीपर कॉल है। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि कई बार होता है कि आपके पास फेक लिंक्स आते हैं, आप और उस लिंक को कुछ क्लिक करते हैं और बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास बाई पास हो जाता है, तो वायरस की प्रॉब्लम है वहाँ पे। चाइल्ड और जो चिल्ड्रंस हैं, टीनेजर्स हैं, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात ही करते रहते हैं और फैमिली के साथ में बात नहीं करना बंद। तो नेक्स्ट है वेब सर्विस जो है ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स और लेटर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, पहले हम ट्रांस लोकली लेटर राइट करके पोस्ट ऑफिस जमा कराते थे, डिलीवर करते थे, पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाता, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता था वहां पे। तो ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। The electronic mail is transmitted between computer system which exchange messages or pass them on to the other website according to certain internet protocol or rules for exchanging emails. So you can send email from your computer at any time, any address around the world, and your electronic letter or email will arrive at its destination in a second after you send it, even if the receiver is not online. तो ईमेल वाला केस जो है यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि रिसीवर जो है हमेशा ऑनलाइन रहे, वो ऑफलाइन भी होगा तो भी उसको मेल मिल जाएगा विद इन सेकंड्स। और सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट आपको होना चाहिए, which is either web based online email account or email account on your ISP servers। कुछ ISP servers भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी आपको, जैसे यहाँ पे Gmail, Yahoo Mail, Rediff Mail, ये आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ ईमेल अकाउंट, एलिमेंट्स सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर इनबॉक्स, जहाँ पे आपके ऑल इनकमिंग मैसेज, आउटबॉक्स, the message is stored in outbox until it successfully sent to the recipient। तो इनबॉक्स में आपके सारे इनकमिंग मैसेजेस, आउटबॉक्स मींस जब तक आपने किसी को मैसेज सेंड किया है, जब तक वो पूरा डिलीवर नहीं होता तब तक वो आउटबॉक्स में रहता है, रिसीवर सेंड हो जाता है वहां पे, वो सारे सेंड मेल्स रहता है। फिर ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट मैसेज जो दैट मींस जिनको आपको सेंड करना है, रेडी टू सेंड, अभी आपने किसी को सेंड नहीं किया बट वो आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, कुछ फाइल अटैच कर रहे हैं, तो वो ड्राफ्ट में सेव रहती है। ट्रैश मीन डिलीटेड मैसेजेस, और स्पैम मीन जंक ईमेल्स, जो आपके अनवांटेड मेल मैसेजेस हैं वो सारे वहां पे चले जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ ईमेल मैसेज, दो फॉर्मेट है वहां पे, प्लेन टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। प्लेन टेक्स्ट में आप सिंपली टेक्स्ट सेंड टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है वहां पे। इट कैन हैव अटैच पिक्चर और ग्राफिक्स बट दे कैन नॉट बी इंसर्टेड। तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में अगर बात करें तो हम नॉर्मली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, वहां पे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग बोल्ड करना है, मेटालिक करना है, कलर करना है, फोल्ड को
यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट आप पिक्चर्स को अटैच सकते हो, बट पिक्चर को आपने वेब पेज में आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होगा, इट कैन नॉट बी रीड बाय एनी टाइप ऑफ ईमेल एप्लीकेशन। इट सपोर्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस सच एज बोल्ड, इटैलिक, कलर्ड। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस सच एज बोल्ड, कलर आप कर सकते हो, fonts, पिक्सोग्राफिक्स कैन बी इंसर्ट भी सकते हैं वहां पे। अब ईमेल के कुछ कंपोनेंट्स है। टू, दिस विल कंटेन द ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट जिसको आपको मैसेज मेल सेंड करना है। सीसी मींस कार्बन कॉपी, और बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी का मतलब दिस कंटेन एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट whom you want to send copy of an email। तो जिस सेम मेल सबको सेंड करना है, उस केस में हम सीसी को यूज करते हैं। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दिस फील्ड आल्सो कंटेन द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स। सी लिखे होते हैं वहां पे भी लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स है जिनको सेम कॉपी सेंड करनी है। यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स है, बट BCC recipient can see the to and CC addresses, but BCC recipient name is not visible to others। तो BCC जब आप मैसेज मेल सेंड करोगे तो टू में जो मैसेज जिसको भी जा रहा है वहां पे, बाकी रिमेनिंग जो BCC के अंदर आपने रेसिपिएंट के नेम लिखे हैं वो एड्रेसेस जो है विजिबल नहीं होंगे, ब्लाइंड होंगे वहां पे। तो उसको पता नहीं चलेगा और किसको ये मैसेज भेजा है, ये मेल भेजा है। सब्जेक्ट, दिस फील्ड कंटेन द टाइटल ऑफ मैसेज, क्या सब्जेक्ट है वहां पे, किस टाइटल के बारे में मैसेज सेंड किया जा रहा है। बॉडी या आपका एक्चुअल ईमेल मैसेज, आपकी बॉडी सब्जेक्ट वहाँ पूरा आपको डिस्प्ले करना है, क्या चीज़ आप अटैचमेंट्स है, फाइल कौन सी फाइल आपको मर्ज करनी है वहाँ पे ईमेल के साथ में अटैच करना है, वीडियो भेजना है, ऑडियो भेजना है, टेक्स्ट फाइल है, पीडीएफ है, एनीथिंग। फिर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टाइप यू कैन एडिट द मैसेज, उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे, बोल्ड, इटैलिक, कुछ आपको सेंटर फॉरवर्ड फॉर्मेटिंग। फिर अदर ऑप्शन में इमोटिस, बोल्ड, इटैलिक, हाइपरलिंक आर ऑल्सो टू मेक the send button, you have to click the send button to send। और फिर अगर आपका मैसेज वापस आपके पास रिप्लाई आया है तो उसमें आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो। ये सारा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। फिर यहाँ पे देखिए ये मैसेज है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट टू aryan@gmail, सीसी में कार्बन कॉपी, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट फॉर कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी से सब्जेक्ट आता है यहाँ पे आपका एक्चुअल मैसेज दे दिया। फिर सेंड, ये इंसर्ट करने के लिए, फोन स्टाइल के लिए, ये गूगल ड्राइव से इंसर्ट फाइल यूजिंग गूगल ड्राइव से इंसर्ट करने के लिए, ये कैमरे से, फिर यहाँ पे ये शेयर लिंक करने के लिए, डिलीट करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल है। फिर ईमेल का एडवांटेज क्या है, ईमेल स्पीड्स अप द वर्कफ्लो प्रोसेस, documents can be sent for comment, correction can be made quickly, email save papers and printing cost, multiple copies of message can be sent to group of people, बहुत सारे लोगों को आप सेम मैसेज सेंड कर सकते हो। मैसेजेस कैन बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, सेव until you are ready to send them। हम अलग से मैसेजेस सेव करके वहां पे ड्राफ्ट कर सेव भी कर सकते हैं। फाइल एंड इमेजेस कैन बी अटैच्ड टू ईमेल। डिसएडवांटेज क्या होगा कि ईमेल अटैचमेंट में कई बार हमारे पास वायरसेस दे सकते हैं, लिमिटेड रहते हैं एफपी, यहाँ पे 20 MB से ज्यादा आप डेटा सेंड नहीं कर सकते एक मेल के अंदर। एस्टिमेटेड टू करने इमोशंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। नो गारंटी दैट ईमेल विल बी रीड अंटिल द यूजर लॉग्स ऑन एंड चेक ईमेल। अब ये हमें गारंटी नहीं कि हमने जिसको मेल सेंड किया है कब तक उसको रीड आउट कर लेगा वहाँ। फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीफोन, इट आल्सो नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी, इट इज मेथड एंड ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया सेशंस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वी कैन से दैट कि हम वॉइस कम्युनिकेशन, दैट मींस कॉलिंग जो है टेलीफोनिक कॉल यूजिंग इंटरनेट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे वॉइस कॉल्स थ्रू इंटरनेट आईपी नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप जो भी कॉलिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, वो आपके हैं वॉइड। इसको टर्म इंटरनेट टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड फोन सर्विस रेप्लिका टूल, the provisioning of communication services for voice, fax, SMS, voice messaging over the public internet। इंटरनेट के थ्रू अगर आप ये सारी सर्विसेज सेंड कर रहे हैं तो वो है वॉइड। और हम सेम पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क यूज कर रहे हैं, PSTN या प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। फिर अवॉइड फोन नेसेसिटी, अब यहाँ पे आपको वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन भी चाहिए वहां पे टू कनेक्ट टू वॉइस सर्विस प्रोवाइडर। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड सर्विस में। तो फर्स्ट आपके पास अगर वॉइस फोन है तो डेडिकेटेड वॉइस फोन आप परचेज करेंगे, वहां पे वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन अवेलेबल है वहां पे जो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। चाहे आप वायर्ड इंटरनेट यूज करो वहां पे लैन केबल और वाईफाई के थ्रू आप उस फोन को कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड जो है जो आपका एनालॉग टेलीफोन है उसको
हम एनालॉग टेलीफोन अडेप्टर से कनेक्ट कर देंगे नेटवर्क से एंड implement electronics and firmware to operate a conventional analog telephone attached through a modular phone jack। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एनालॉग टेलीफोन अडेप्टर से हम कनेक्ट करेंगे अपने रेगुलर फोन को, नॉर्मल फोन जो एनालॉग फोन का हमारे घर में फोन है उसको, और उसके थ्रू। और सेकंड है सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन नेटवर्क पूरी कंप्यूटर पे हम सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे जिसके थ्रू हम वॉइस कॉल कर सकते हैं, जैसे गूगल टॉक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम करते हैं, तो ये हम फेसबुक से भी वॉइस कॉल करते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम वॉइस कॉल वीडियो कॉल करते हैं। तो वो सारा कुछ क्या है, वॉइस और वीडियो कॉल थ्रू इंटरनेट, ये सारी चीजें हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन है, यहाँ पे वाइप फोन, फिर टेलीफोन विदाउट वाइप अडेप्टर है, वहाँ पे टेलीफोन नॉर्मल टेलीफोन है, फिर हम कंप्यूटर से भी डायरेक्टली वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू काम कर सकते हैं, फिर इंटरनेट के थ्रू आपके टेलीफोन पे कॉल चला जाएगा वहाँ पे। अब आप इस अगर कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन तो वो यूज हो जाएगी। ये सारा कुछ है आपके वॉइस वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखते हैं वाइप एडेप्टर लगा हुआ है, एनालॉग एडेप्टर, उसके थ्रू फैक्स और टेलीफोन कनेक्टेड है। यहाँ पे जो कंप्यूटर इंटरनेट मॉडेम से कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है ये आपके वाइप एडेप्टर भी। फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन कैरियर या टर्मिनेशन कैरियर के थ्रू आपके टेलीफोन लाइंस के थ्रू सेलुलर नेटवर्क थ्रू मोबाइल पे पहुंच गया कॉल, और फिक्स टेलीफोन पे पहुंच गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।